Demotion. Let's start with new chapter. As we all know, in every organization, if an employee is working, either he gets promoted or demoted. In each and every organization, whenever a worker is working, he is capable enough to do his job properly, he is responsible, he works well, he gets promotion. Promotion, that is, employees move to higher position. Whatever position he is working on, he gets higher position from that. His job role changes, his position changes, he gets more responsibility, he gets better pay. This is basically promotion, is a technique to motivate employees. But in the same way, an employee is promoted if and only if he works well, he is responsible, he is capable enough. If a person does not suits to these responsibilities, does not suits to his job, he is not working as per the organization, he gets demoted. That is, he is given a lower position. Either it's permanent or temporary, it depends on the performance of an employee. But yeah, he gets a lower position. The position in which he is working, he is demoted to lower position. And he gets demoted because his performance is either its performance is getting poor, or he's not working, he's not disciplined. So these all leads to poor performance, demotion. Whatever be the situation, if an employee is capable enough, he gets promoted, and if he's not capable enough, he gets demoted. Demotion is opposite to promotion. Employee is shifted to a job lower in status, grade and responsibilities. डिमोशन क्या होता है? जब कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसको, if he is not working as per the organization, he gets demotion, that is, he is given a job lower in status, his grade, his responsibilities. His status is lowered, his salary is lowered, his responsibilities are lowered, he is given a lower position. Demotion is a step is taken so that a person gets improved in his working, his whatever work he is doing, whatever responsibilities he is given. A person gets, if he is not working, he gets demotion so that he may work properly, he may take his responsibilities properly, he may improve his performance. And if still after demotion he is not improving, then he is thrown out of the enterprise. Basically, demotion is shift to a position when the responsibilities decreases, when lower position is given, it's called a person is demoted. This demotion can be either permanent or temporary, it depends totally on the employee. Different scientist Dale Yoder said demotion is a shift to a position in which responsibilities are decreased. Demotion is something when a position is shifted to lower position and his responsibilities are decreased. And promotion is increase in rank and demotion is decrease in rank. As we get promoted, our rank increases, but when we get demoted, our rank decreases. The assignment of employee to lower rank with lower pay, डाउनवर्ड मूवमेंट जब होता है एम्प्लॉय का किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में लोअर स्टेटस और लोअर सैलरी के साथ, यानी कि उसको डिमोशन मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, a person is appointed, let's take a teaching enterprise or a school or a university. If a person is working as a coordinator, and once he is assigned a duty of coordinator, he is not working as per the organization's duties, responsibilities, norms, then a person is demoted. He is taken back his responsibilities from coordinator and appointed as a normal professor or teacher. Demotion should be done so carefully that it should not harm or offend any employee. It should be done whenever it's absolutely necessary. Absolutely necessary in case when it's mandatory that a person is not working as per the his role, as per his duties, not performing his duties properly. In that case only he should be demoted. That is, if it's necessary. Manager should not demote an employee because of being biased or because of his own personal grudges, because if demotion is used imprudently, it affects job satisfaction of employees, it affects morale of employees, make them demotivated, make them feel so dejected and demotivated that they do not want to continue with an
enterprise. Sometimes what happens, managers feel hesitate to demote an employee. So in that case, because they think that if maybe he'll not accept the lower job, maybe he feel he'll not work for the company anymore. So what they do, they directly discharge him from his duties, they directly discharge him from the enterprise, so that they do not have to demote that person in a particular job. Then there are some few factors that affect demotion. Basically, demotion occurs when a person is not working. He's working, his performance is getting poor day by day. He's not following discipline. There are some more factors that affect demotion. Demotion is due to in some cases, demotion is not only due because a person is not working properly or something. Sometimes it's because of adverse conditions. Adverse conditions, whenever there is recession or whenever there is crisis. So what happens, an enterprise combined with different departments. So when they combine with different departments, they have to eliminate some jobs, they have to eliminate some roles. So in that case, if a person who is working at higher position and his role is eliminated, so he is given a lower position. Then we have incompetence. Employees are promoted on basis of seniority, their past performances, how they meet their job requirements, how they are working, and their knowledge, their experience is calculated. So demotion helps to correct errors in promotion. Basically, it works to correct errors in promotion. That is, a person who is not capable is promoted. So in that case, that persons are demoted. Technological changes. On account of changes in technology, day by day technology is increasing and working methods are also changing. Maybe some employees are unable to handle their jobs, they are not able to adjust to new technologies. So in that case, those employees who are not able to work as per the technology, or those who are not able to handle their job, so they are given a position lower of their position. So that also affect, and that changes also make them feel demoted. The employee may be engaged in unethical behavior, have behaved in a way that disrupted workplace. What happens? Some types of demotion. There are different types of demotion. First, we have performance based demotion. A person is demoted, an employee is demoted due to his poor job performance. This is usually due to the result of employee not meeting the expectations of their position. He's not working as per the organization, he's not meeting his deadlines, not following instructions, not working according to the rules and laws of organization, and the work he is doing is not of that quality that should be done. So in that case, if its performance is degrading, the person is also demoted. Then we have restructuring. कंपनी जो होती है restructuring प्रोसेस पे जाती है, कंपनी के स्ट्रक्चर्स ऑपरेशंस चेंज होते हैं. जब ऑपरेशन और स्ट्रक्चर चेंज होते हैं तो काफ़ी बारी कुछ उस पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको लोअर पोजीशंस दी जाती है. देन वी हैव पे कट्स. कुछ केसेस में एम्प्लॉयज़ को डिमोट किया जाता है, उनके पे कट एज वेल. यूजली क्या होता है, एम्प्लॉय को डिमोट किया जाता है लोअर पोजीशन में विद इन दी कंपनी अगर उनका वर्कलोड रिड्यूस करना है. पे कट इज़ आप उनका वर्कलोड रिड्यूस करना चाहते हो, उस केस में आप उनको डिमोट करते हो. देन वी हैव वॉलंटरी डिमोशन. डिमोशंस वॉलंटरी भी होते हैं. बेसिकली उनमें क्या होता है, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करता है टू गिव हिम लोअर पोजीशन इन कंपनी सो दैट वो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके, या फिर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, मे बी वॉट एवर रीजन्स, वो अपने आप को रिक्वेस्ट करके लोअर पोजीशन प्रोवाइड करवाता है. दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ टाइप ऑफ डिमोशन नोन एज वॉलंटरी डिमोशन. Then we have impact. Demotion have both positive as well as negative impact. एम्प्लॉय के करियर में डिमोशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव भी. पॉजिटिव में क्या होता है, उनको चांस मिलते हैं वो स्टार्ट फ्रेश करें, न्यू पोजीशन मिलती है, न्यू स्किल्स मिलते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं कि वो फर्दर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, फ्यूचर प्रॉब्लम्स को अवॉइड करें. देन वी हैव नेगेटिव इम्पैक्ट. नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के मोरल और मोटिवेशन को डिग्रेड हो जाता है. बेसिकली वो ह्यूमिलिएट फील करते हैं, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है जिसकी वजह से उनके कन्फ्लिक्ट्स भी अकर होते हैं वर्क प्लेस पे. तो डिमोशंस को
बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ कि अगर हम डिमोट हो भी रहे हैं तो हमें हैंडल करना आना चाहिए, एक थॉटफुल उस पर चलना चाहिए, नेगेटिव इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ रखना चाहिए और पॉजिटिव इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज़। हमें हर उस पर उस चीज़ को भी पॉजिटिव वे में लेके पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि हम उसमें अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं या फिर अपना मोरल मोटिवेशन डिग्रेड कर रहे हैं। देन वी हैव डिमोशन पॉलिसी। डिमोशन बहुत हार्मफुल होता है एम्प्लॉयज़ के मोरल के लिए, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली एक पेनफुल एक्शन होता है। फॉर वर्क पर्सन एम्प्लॉय इज वर्किंग इन अ गुड पोजिशन, सडनली वी गिव हिम द पोजिशन विच इज़ लोअर बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस और समथिंग, तो वो उसके लिए एक तरह से एक्सट्रीमली पेनफुल एक्शन होता है। उसके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। डिमोशन से मैनेजर एक्सट्रीमली केयरफुल होकर मैनेजर को डिमोशन करनी चाहिए। अ पर्सन अ मैनेजर हु इज़ डिमोटिंग हिज एम्प्लॉयज़, ही हैज़ टू बी केयरफुल, ही शुड डू इट इन सच अ वे कि वो एम्प्लॉयज़ को हार्म ना करे, हर्ट ना करे और उन पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। बिकॉज डिमोशंस हैव अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन नीड फुलफिलमेंट। जो नीड्स होती है इस टीम की, बिलोंगिंगनेस की, वो फ्रस्ट्रेट कर जाती है। एक डिफेंसिव बिहेवियर आ जाता है पर्सन के डिमोशन होने पे। उनको कंप्लेंट्स होती है, इमोशनल टर्मोइल, इनएफिशिएंसी एंड इवन दे रिज़ाइन फॉर दी जॉब। डिमोशंस बहुत रेयरली मैनेजर्स उस पर वो होते हैं। मैनेजर्स प्रेफर करते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ को डिस्चार्ज करे, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रॉपरली फेस करे और डिमोशन उसको भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ उनको एक्सप्लेन करे सो दैट दे डोंट फील डिग्रेड। देन वी हैव 5-fold पॉलिसी। 5-fold पॉलिसी जो होती है एक क्लियर लिस्ट ऑफ रूल्स होते हैं जहाँ पे पनिशेबल ऑफेंसेस भी अवेलेबल किए जाते हैं हर एम्प्लॉय को। कोई भी वायलेशन होता है उसको थर्डली इन्वेस्टिगेट किया जाता है अथॉरिटीज़ के थ्रू। बेटर होता है कि रीज़न स्टेट किए जाए कि वो स्टेप क्यों लिया गया, क्लियरली और एलेबोरेटली हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। और एक बार ही जब वायलेशंस प्रूव हो जाए तो एक कंसिस्टेंट और इक्विटेबल एप्लीकेशन होनी चाहिए पेनल्टी की, और इनफ रूम होना चाहिए रिव्यू के लिए, यानी कि देयर मस्ट बी इनफ टाइम कि वो आप प्रॉपरली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, समझो, रिव्यू करो, हर चीज़ को देख के आपको एक्शन लेना चाहिए। देन वी हैव डिमोशन पॉलिसी। डिमोशन पॉलिसी में क्लियर कट सेट ऑफ रूल्स होते हैं। एम्प्लॉय शुड बी कम्युनिकेटेड द ग्राउंड्स विच विल अट्रैक्ट डिमोशन। जितने भी फैक्टर्स है जो डिमोशन को लीड करते हैं उनको एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट उस पर ही प्रायरली इन्फॉर्म कर देना चाहिए, रूल्स एक्सप्लेन कर देना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने कंडक्ट इफ दे समथिंग हैपन्स, इफ़ दे परफॉर्म सम रॉन्ग एक्शन, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्लेन करे। मशीनरी टू इन्वेस्टिगेट वायलेशन ऑफ रूल्स कैन स्टेट इन देयर डिफेंस। वो अपने डिफेंस में अपने आप को स्टेट करे। इक्विटेबल एक्शन जो भी एम्प्लॉयज़ की उस पर है वो वायलेशन के लिए लेना चाहिए। एंड इन फैक्ट ऑल एक्शन शुड बी फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। कुछ बायसनेस नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कंडक्ट के लिए, कोई पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। रिव्यू करनी चाहिए प्रोविजंस को और अपील करनी चाहिए टॉप मैनेजमेंट को। बेसिकली जो भी प्रोविज़न फॉर अपील है वो टॉप मैनेजमेंट को भी देनी चाहिए, उनसे भी करनी चाहिए। देन वी हैव प्रोसेस। देयर इज़ डिफरेंट प्रोसेस फॉर डिमोशन। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है डिमोशन के लिए। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन। डिमोशन डिसाइड करने से पहले एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और बिहेवियर को थरली इन्वेस्टिगेट किया जाता है। एक इन्फॉर्म किया जाता है डिमोशन के रीजंस के उस पर, उसको चांस दिया जाता है फर्स्ट कि वो रिस्पॉन्ड करे। मीटिंग डिस्कशन उस साथ रख जाती है। सुपरवाइज़र और एचआर उसको हेल्प करते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं एंड देन दे प्रोसीड फर्दर। आफ्टर द कंसल्टेशन एंड फीडबैक एक फॉर्मल नोटिस होता है। अगर डिमोशन डिसीजन फाइनलाइज होता है फीडबैक के बाद भी तो एम्प्लॉयज़ को एक रिटर्न नोटिस दिया जाता है जिसपे वो अपना रोल चेंज करे, एक्सप्लेन करे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कंपनसेशन और बेनिफिट्स करे। देन वी हैव डॉक्यूमेंटेशन। एंटायर प्रोसेस, मीटिंग, डिसीजन, कम्युनिकेशन, ये वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ट्रांसपेरेंसी और लीगल कंप्लाइंस के साथ स्टेट किया जाता है।
डिमोशन, एज एवरीथिंग हैज़ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. प्रमोशन के हमें लगता है वी हैव एडवांटेजेस बट इट हैव डिसएडवांटेजेस. सेम वे demotion, when you are given a lower position, it also have advantages. It motivate individuals कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें. उनने जो स्टेटस, जो उनके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी आ रही है, वो उस पर वर्क करें, उस चीज़ पे उसको वापस गेन करें. एम्प्लॉयज़ को अलर्ट रखें, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी उनको दी जा रही है उनको परफॉर्म करने के लिए. जितने भी एम्प्लॉयज़ स्ट्रगल कर रहे हैं डिमांड से, हाई लेवल पोजीशन से, उनका स्ट्रेस रिड्यूस किया जाए, प्रेशर और एक मैनेजेबल रोल उन्हें दिया जाए. डिमोशन एक अपॉर्चुनिटी भी होती है एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो अपना कॉन्फिडेंस वापस ला सके, न्यू स्किल्स डेवलप कर सके. बिकॉज एज जब उन्होंने वो काम किया और अब के उस पर टेक्नोलॉजी चेंजेस, एनवायरनमेंट चेंजेस, तो हर चीज़ को लर्न कर सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके. Then we have disadvantages. डिमोशन बेसिकली एक डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन और लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस लीड करता है एम्प्लॉयज़ के. उस पर सैलरी और बेनिफिट्स भी रिड्यूस हो जाते हैं, फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी डिस्करेज किया जाता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो जाता है एम्प्लॉयज़ को कभी कभार. बिकॉज इफ़ यू आर इन अ हाई पोजीशन, यू आर अर्निंग मोर, सडनली आपको डिमोशन मिल रहा है, आपका स्टेटस लोज पे जा रहा है, तो आपको वो डिसअपॉइंटमेंट लगती है, कॉन्फिडेंस लूज होता है, एंड देन यू आर पेड लेस, आपकी सैलरी भी रिड्यूस हो रही है, तो वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आ जाता है. वर्किंग ऑफ एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव नहीं करता है. एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन लीव भी कर सकते हैं इन सम केसेस. इन एवरी केस इट्स नॉट लाइक कि आपको डिमोशन किया तो आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, आप इसे पॉजिटिव लोगे. जो नेगेटिव उस पर लेते हैं वो वहाँ पे जॉब भी छोड़ देते हैं, दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉयज़ हु आर डिमोटेड में एक्सपीरियंस अ ब्लो टू दियर प्रोफेशनल रेपुटेशन. उनकी रेपुटेशन में भी इफ़ेक्ट आता है, वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन उसमें वो सेल्फ इस्टीम पे ले लेते हैं और उनकी सेल्फ इस्टीम पे डिमोशन का इफेक्ट आता है. ऑब्वियस व्हेन यू आर इन अ हायर पोजीशन, यू आर गिवन दैट रिस्पेक्ट, दैट इस्टीम, बट बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस और बिकॉज ऑफ समथिंग यू हैव डन रॉन्ग, उसकी वजह से जब आपकी पोजीशन लोअर उस पर जाती है तो उससे आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ इस्टीम भी इफ़ेक्ट होती है.